ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائڈ اینگل اور ہم بات کر رہے ہیں بی جے پی کی ڈیفیٹ اور عام آدمی پارٹی کی فتح، اس کا امپیکٹ اور فیکٹرز کیا ہیں رسپانسبل اس سارے معاملات میں۔ مطلوب صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو ہم اس تناظر سے میں اگر دیکھیں کہ کرپشن کے خلاف ایک مہم آ گئی ہے اور عام آدمی بیدار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں پچھلے 5 سال 10 سال میں جو اویئرنیس آئی ہے، میڈیا کا بھی اس میں رول ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے، آگے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی مخالفت بھی بہت ہے، لیکن بہرحال ایک جو بیداری ہے، ایک بیداری کی لہر ایک عام آدمی کے اندر وہ بہرحال آئی ہے، وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ممالک جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں کرپشن ہے، جہاں پہ مافیاز ہیں، جہاں پہ عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ایسے ماحول میں ایسا واقعہ ہو جانا کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا تبدیلی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، غضنفر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کے ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، اٹس بین فار مینی ایئرس، یو نو، اینڈ انڈیا جو ہے ناٹ اونلی ہیومن رائٹس، یو نو، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آر ایس ایس جو ہے، جو بی جے پی کی سپورٹنگ پارٹی ہے، دے برن اباؤٹ 5 چرچز ان انڈیا. And also they are Hindu extremists جو ہیں, they are forcing Christian and Muslim to convert into the Hinduism. I mean, this is the extreme. And so how come the India is looking for a... بابری مسجد کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے؟ You can say, I mean, not only that, you see in Gujarat, I mean, they have do the mass killing in Gujarat. So how come the India is looking to get the seat in the United Nations Security Council? I mean, they must put their act together first, before they're doing that. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. ہم دیکھیں نا، ہمیں ان کی لابنگ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے انٹرنیشنلی. That's what exactly the problem is with the Pakistan کی foreign policy جو ہے, they are not acting and they are not telling the United Nations that what the India has been doing with the people of his country. And not only that, I mean, the India is sponsoring the terrorism not only in Pakistan and on the surrounding countries also. But Pakistan is ایک ایسا ملک جس کے ہر ملک کے ساتھ تنازعات ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات, وہ کیسے سیٹ لے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. Versus to Pakistan, Pakistan is in a very good shape. Pakistan is a very strong country. And not only that, پاکستان آرم فورسز از دی اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں. جنرل راشد از جسٹ وزٹڈ ٹو سعودی عرب اینڈ ہی میٹ ود کنگ فہد, and also, I mean, not King Fahad, I mean King Suleiman, the new King Suleiman. And also, and they talk about the security of Saudi Arab in case of Iranian threat. So the Pakistan is committed to support Saudi Arab in any kind of threat. And also, he met with the defense minister. He also met with the minister of Royal Guard, and he also get awarded the highest award in Saudi Arabia, King Abdul Aziz Medal. He got it. So the Pakistan is very strong. اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں. دیکھیں جی, پاکستان جو ہے نا, پاکستان کو لوگوں نے لوٹا ہے. پولیٹیشین نے جو ہے انہوں نے بہت لوٹا ہے پاکستان کو. تو صرف اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے اور پاکستان قائم رہے گا. جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوٹا, انہیں کو تو ہم لاتے ہیں دوبارہ, پھر دوبارہ انہیں کو لائیں گے, پھر لائیں گے انہیں. تو قصور کس کا ہوا؟ دیکھو جی, I am for the democracy. The democracy is good. But before you put the democracy, I mean, I wish the Article 67 apply in the Constitution apply into the election, and that Constitution will eliminate the corrupt politician. تو وہ جو Constitution ہے کہ شیخ ہے, وہ only apply on one person, and that's Pervez Musharraf, and everybody else is go through the election. ہاں, لیکن ہوگا یہ نا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ خود اس میں انوالو ہیں, وہ کیوں کریں گے؟ نہیں, اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی 30% جو جی بی ٹی ہے has been provided the overseas Pakistani. And overseas Pakistanis کو they are not allowed to participate in the election. چلیں, ایک کالر ہیں جی, ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام جی, ظفر بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. ہلو, بات کیجئے جی. ظفر بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. ہلو,
जी जफर बात कर रहा हूँ ह्यूस्टन से। जी जी, बात कीजिए। ये जो अवाम पार्टी और बीजेपी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो एक जोश में लोगों ने आके उसको जिताया कांग्रेस से आके। असल जीत तो अवाम पार्टी की हुई है। आप देखें 70 में से 60 नशिस्तें ली हैं उन्होंने, वो कि ये इम्तिहान में है अभी, लेकिन आप ये देखेंगे कि आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी जरूर उभरेगी और जी। अवाम में इस पार्टी की जड़ें होंगी। बीजेपी की दिल्ली की शिकस्त जो है बहुत बड़ी शिकस्त है। अच्छा, अपना अभी कोई उनको- सवाल आपके जहन में क्या है? आपका क्या ख्याल है, अवाम पार्टी आगे जाएगी या नहीं जाएगी? और बीजेपी जी ये जी। है कि बीजेपी को इतनी जबरदस्त शिकस्त जो हुई है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कुछ सवाल इनका समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, मेरा ख्याल है वो बीजेपी के बारे में ही बता रहे हैं कि वो उनकी हाँ, तो वो शिकस्त के असबाब पे ही बात कर रहे हैं। कुछ आवाज़ क्लियर नहीं थी उनकी, कुछ ड्रॉप भी हुई है। तो चलें, दोबारा अगर कॉल आई तो हम बात करेंगे। फयाज साहब, आप चूँकि इंडिया से ताल्लुक़ है, आपकी नज़र है वहाँ के अफेयर्स पे भी, आम आदमी पार्टी जो है इसका क्या समझते हैं, मुस्तकबिल क्या है? मैं समझता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है, मैं जब से आम आदमी अमल में आई है तो मैं मुस्तकिल तौर पे मेरी नज़र है, मैं ये देख रहा हूँ इंडिया को एक थर्ड पार्टी की अशद ज़रूरत थी। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं आर देयर, जिनका कोई सलूशन ना तो कांग्रेस ने किया। Being a Congressy, I don't have any problem to say that. I mean, this is the truth. तो उसमें उनको जो कि बुनियादी तौर पे करना चाहिए था काम, नहीं किया, और बहुत नाइस हम्बल, और वो अपने तरीके से हुकूमत करते रहे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि ऐसा भी वक्त आएगा कि इनकलाब भी आ सकता है। जाहिर इनकलाब है ये। तो बीजेपी को रीज़न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो हिंदू हैं इंडिया के, दे आर द डेमोक्रेटिक, आई मीन लिबरल माइंडेड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका एजेंडा है, तो वो बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल विंग है उनका। हाँ बिल्कुल, वो तो इंतहा पसंद जमात है, बिल्कुल। हाँ जी, वो उनके इनडायरेक्ट वे में यानी वो अपना एजेंडा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने देखा घर वापसी, जो कि बेचारे क्रिश्चियन हो गए थे हिंदू, तो उनको उन्होंने कहा वापस आओ। तो जैसे लव जिहाद आपने कहा, तो इस तरह की जो भी जब ये आ गए थे इस डर में, भले जाहिर है कि नारा तो जो तरक्की के नारे पे ही आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम ने आपको वोट तरक्की के नारे पे दिया है। तो जो कि इनको 77 में भी इनकी 2 सीटें थीं और इंदिरा गांधी को हरा के, क्योंकि फैमिली प्लानिंग लाई थी इंदिरा गांधी, और वो इस्लाम में हराम थी, तो मुसलमानों ने कहा कि उसके खिलाफ उन्होंने इन्हीं को वोट दिया था, बीजेपी को, जो कि जनता पार्टी के नाम से थी उस वक्त। और इनकी 2 सीटें थी और मेजॉरिटी में आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आटा घर रोटी कपड़ा और मकान का नारा वारा दिया। वो खैर वो ज़्यादा दिन हुकूमत नहीं चली, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नेशनल टेलीविज़न पे आई, और उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी मुसलमानों से। उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं था ये इस्लाम में हराम है, तो मैं वापस लेती। अच्छा, तो उतनी तेज़ी से मुसलमान, इस बीच इनकी नीतियाँ जो थी, तो हमारे यहाँ एक हिंदी का लफ्ज़ है कि नीति से नीयत होती है। तो इनकी नीति जो थी वो कुछ डगमगाई, उसकी वजह मिड टर्म पोल हुआ विद इन 6 मंथ, और इंदिरा गांधी वापस, और उसके बाद से मरते वक्त तक मुस्तकिल तौर पे मुसलमान उन्हीं के साथ रहे। लेकिन ये ट्रेडिशनल साथ था मुसलमानों का कांग्रेस से हमेशा से, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े रहना था उन्होंने, उसमें उसकी उनकी अपनी बका समझी, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जाहिर है कि मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी, तो दैट्स व्हाई इट इज। तो लेकिन जाहिर है कि कम्युनल पार्टी कोई भी हो, XYZ, हिंदुओं की हो या क्रिश्चियंस की हो या सिखों की हो या या सब, ये जो मुसलमानों का चूँकि वहाँ पे हम बात करते हैं जी, वो सबसे ज़्यादा तादाद है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, इंडोनेशिया से भी ज़्यादा है, बड़ी अकलियत है वो। तो अब क्या समझते हैं कि इलेक्शंस जब होते हैं तो वो किस बुनियाद पे वोट देते हैं? इस उम्मीद पे वोट देते हैं कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनको भी मौक़े दिए जाएंगे, जॉब्स मिलेंगी, मेन स्ट्रीम में आएंगे। क्या असल सूरत हाल क्या है, ऐसे होता है?
ये अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन एक उम्मीद पे करते हैं, रहने की कोशिश करते उसी हैं। की उम्मीद पे करते हैं। माजर चाहता हूँ, मेरा गला खराब हो गया था थोड़ा। हाँ, पानी पी लें, पानी से शायद बेहतर हो जाए। हाँ, ज़्यादा ऐसे बेहतर हो जाए। तो बेसिकली आपने सही कहा कि उनकी जो उम्मीद होती है वो तो यही होती है कि उनको हकूक़ हासिल होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी और वो सारी चीज़ें। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो करप्शन की वजह से वो है, उनको नहीं हासिल होती। इसी वजह से अब इनको ट्राई किया गया। इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें डिफरेंस ये है कि इंदिरा गांधी को मौका मिल गया था वापस आने का। उसकी रीज़न ये थी कि जो बीजेपी थी उसने कोई 96% मेजॉरिटी नहीं ली थी, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है जो कि मैं ख्याल में हिस्ट्री में बहुत कम पार्टीज होंगी बीजेपी के पास नहीं, इस वक्त जो आम आदमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, मतलब शायद हो सकता है कोई डिक्टेटर भी इलेक्शन करवाता हो तो 96% शायद ना यानी हो। there is no opposition. इट्स जस्ट स्वीपिंग है। इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यही मैंने कहा कि अब बीजेपी के लिए जितनी भी कोशिश कर लें वो इनके पास वैसे ही अपॉर्चुनिटी है जैसे इमरान खान साहब के पास KPK में जी थी और है, जी दोनों। आपके भी यही वक्त हाँ आएगा। जी, तो बेसिकली उनके पास अपॉर्चुनिटी है और बीजेपी के पास वो मौका अब नहीं है क्योंकि उन्होंने 96% ले लिए हैं। तो इस वजह से काफ़ी उम्मीद है कि चेंज आएगी मुसलमानों के को भी। और इसके अलावा जो मेन रीज़न है, दिल्ली हमेशा से दारुल हुकूमत रहा है। आपको मालूम है कि उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। मुगलों के ज़माने में भी, फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में, फिर हमारे इस दौर में भी। तो उसका एक रीज़न अच्छा मेजॉरिटी वहाँ जो बड़ी अजीब बात ये हुई। फियाज साहब आप कर लें, कोई प्रोग्राम खत्म हो गया टाइम, तो मैं मुख्तसर जी एक नहीं बस एक लाइन में आपका कोई एक लाइन बता जी बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली जो जोग्राफियाई एतबार से मरकज़ है और वहाँ पे जो दो कौमें मेजॉरिटी में हिंदू और मुसलमान, अच्छा और सिख भी कुछ, लेकिन पंजाबी उसमें ज़्यादा हैं जो कि गुजरातियों से कभी नहीं बनती। बिल्कुल सही। मुसलमानों के इमाम ने फतवा जारी कर दिया। तो ये दैट्स व्हाई सही। तो चलें, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। प्रोग्राम का वक्त तो हमेशा ही महदूद होता है और आज ज़्यादा महदूद है। बहुत शुक्रिया मतलूब साहब आपका, फयाज साहब आपका, तशरीफ़ लाए, इलियास साहब आपको प्रोग्राम को आने का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बात तो हमने की आम आदमी पार्टी की फतह पे, बीजेपी की डिफीट पर और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे, लेकिन असल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक ऐसी लहर है, एक ऐसी वेव है, एक ऐसी बेदारी है जो आ रही है आम आदमी के अंदर, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। ये मुआशरा, ये समाज जो है इसने तब्दील हो के रहना है। और ये देखिएगा, अगर हमारी ज़िंदगियों में ना हुआ, अगली नस्ल की ज़िंदगियों में ये ज़रूर होगा। और इसी तरह के केजरीवाल और इसी तरह के शायद वो इमरान खान की शक्ल हो, शायद किसी और शक्ल में सामने आए, लेकिन ये मुआशरा बिलाखिर उस मुआशरे की शक्ल इख्तियार करेगा जिसका हम ख्वाब देखते हैं। ज़फ़र हाशमी इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।